Afternoon, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while. Now, in last class, I have started Unit 6 titled Business Management and Human Resource Management. Right, so in last class I explained why this is now titled as business management because there are some topics which have been included over and above HRM, right? But the question arises, does that makes HRM insignificant? No, it is still very, very significant if we talk about from your एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो इसलिए एचआरएम को भी पढ़ना उतना ज़रूरी है जितना हमने बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा हमने लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन डिटेल राइट एंड इन फर्दर क्लासेस वी विल टॉकिंग अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट इन डिटेल एज वेल राइट तो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में और बात करेंगे इन फर्दर क्लासेस थ्रू क्वेश्चंस और थ्रू अदर मीडियम्स बट आज की क्लास में our whole idea, our whole concept will be talking about human resource management. Why? Because it still forms a major part of your syllabus. काफ़ी major part ये बनाता है और इससे काफ़ी questions भी पूछे जाते हैं. So that is where we have to learn about HRM and surely we will practice HRM and this unit questions in upcoming videos. तो वो भी है right. अगर अभी तक हम बात करें HRM के बारे में हमने कितना लर्न करा है उससे रिगार्डिंग पहले फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज HRM why it is needed and what are the functions which need to perform ठीक है तो HRM के अगर हम बारे में बात करें तो वो है क्या फर्स्टली और वाई इट इज़ नीडेड क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत है और उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं तो उसके बारे में विल लर्न द बेसिक्स देन उसके बाद विल प्रोसीड विद द टूल्स ऑफ HRM काफ़ी सारे मेजर टूल्स है HRM के और उसी से वी कैन एक्सपेक्ट मेनी क्वेश्चंस एज वेल ठीक है धीरे धीरे विल कवर majority of things about HRM in this video so it's my it's my humble request that you actually watch the video till the end because towards the end of the video there is something important that I want to discuss that will actually can guarantee your JRF so that there is a possibility right so what you have to do is make sure you stick till the end now let's start the video with HRM right ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी हैव हर्ड दिस टर्म सी होता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट वी यूजुअली थिंक द ब्रांड इज ब्रांड बिकॉज ऑफ वाई बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज दैट दे आर वर्किंग राइट अगर हम बात करें किसी कंपनी की किसी ब्रांड की किसी ग्रुप की तो वो है क्यों इतना स्टेबल वो इतना बड़ा क्यों बना है बिकॉज ऑफ द पीपल दैट दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन राइट इफ द एम्प्लॉयज don't start if they stop working if they don't perform the functions then we all know that that organization will fail right so employee से organization बनाते हैं मतलब इसका कहने का क्या मतलब है हम HRM की अगर historically बात करें तो पहले अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अराउंड की टाइम की बात करें सो अर्लियर वर्कर्स वर यूज टू बी ट्रीटेड एज एनिमल्स बेसिकली देर वर नो वर्कर राइट्स वहाँ पे उनके कोई राइट्स नहीं होते थे दे यूज टू वर्क फॉर एंडलेस आवर्स इन पुअर कंडीशंस and because the company used to think that you know the employees have to work like machine relentlessly काम ही करते रहना है and we have to attain more and more profits but होता क्या है like after a point the productivity let's suppose the productivity goes up initially but if you make a person work relentlessly the productivity will fall right so let's suppose this is productivity the productivity will fall and probably it can end up into negative end okay कि आप जितना काम इनिशियल डेज में इतना कर रहे थे अब हो क्या रहा है आपको फोर्स कराया जा रहा है कि आप इतना कर दो हुआ क्या आपने इससे थोड़ा बेटर तो करा आपको फोर्स करा गया बट ज़्यादा फोर्स करने की वजह से यू लैंडेड अप एंड एंडेड अप डूइंग दिस मच वर्क तो इसको हम बोलते हैं कि इफ the employees are not being treated right their productivity level will surely
come down, and because of it organization will definitely face consequences. I'm not saying will shut down, but yeah, definitely you will face some losses, because जो उस एम्प्लॉय का पोटेंशियल है, वाई यू हायर दैट पर्सन, वो सारा वेस्ट हो जाएगा. इसी के लिए वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज ह्यूमंस आर द वन हु इज एक्चुअली वर्किंग एंड पुटिंग अप द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब इतना काम करा जाता है, राइट, इवन इफ वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, देयर इज समवन हु इज एक्चुअली गिविंग द कमांड्स, हु इज एक्चुअली ओवरसीइंग द वर्क, राइट. तो ऐसा नहीं है कि दैट द मशीन हैज ओवरटेकन अस ऑलरेडी, राइट. तो ऐसा नहीं है. But because, as I said, the productivity used to hit earlier when we're talking about industrial civilization, so workers were just treated like as animals, where they used to work relentlessly, where the owners made them work in harsh conditions, right. तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, वर्ल्ड वॉर, many things changed, and later on we ended up on discussing what is human resource management, right. So human resource management is not a new topic. It has been evolving, काफ़ी इवॉल्व होता रहा है, और ये अब जाके what we are seeing where employees are considered as assets, right. So हम asset बोलते हैं किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनका ध्यान रखना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है. अगर हम उनके ध्यान अच्छे से रखेंगे, तो देन दे विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स, एंड योर गोल्स एंड देयर गोल्स, इफ दे आर इंटीग्रेटेड, डेफिनेटली योर गोल्स विल ऑल्सो बी अकम्प्लिश विद देयर गोल्स, राइट. तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट थोड़ा लेटर आया है, बट डेफिनेटली हैज़ बीन सीइंग, इवॉल्व होता रहता है, ठीक है. अब इसके बारे में डेफिनेशन जस्ट वी विल गिव इट अ ब्रीफ रीड. तो ये क्या है, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इट्स पीपल, राइट. एज आई सेड, सी, ये जो थिंकिंग है दैट एचआरएम में, अगर हम बात करें कि दैट एम्प्लॉयज आर देयर एसेट, दिस डिडंट कम ओवरनाइट. एक रात के अंदर नहीं हुआ था कि एक दिन में यू डिस्कवर दैट ओवरनाइट ओके दीज आर द एसेट. नहीं, ऐसा नहीं है. तो फर्स्टली इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस द सिंपल, द वन वन एंड द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू think about that it involves planning, organizing, directing and controlling what we have studied in business studies. तो जो भी हमारा मैनेजमेंट में होता था, सी, ऐसा नहीं है कि एच आर एम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, नहीं. सी, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज़ मैनेजिंग पीपल, राइट. तो अब इसमें हम लोगों को मैनेज करना चाहते हैं, तो इसमें सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो तो इंक्लूडेड होते ही हैं, बट एक पर्सन स्टडी, एक पीपल स्टडी भी डिफरेंटली करी जाती है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे का सारा तो होगा ही होगा. वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, हमारा काम ही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एचआरएम इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग पर्सोनल, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, राइट. अगर देखो, यू नो दैट यू हैव हायर्ड द बेस्ट पीपल अराउंड, आपने बेस्ट, बिकॉज हम करते क्या है, एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट में, वी इनवाइट द बेस्ट पीपल, वी सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द बेस्ट. तो उसके बाद you have to make sure that you're optimizing their employees, like agar even if you have the best employees in your office, there are chances that they won't work to their optimum level. Why? Because see, there is an environment, there is a strategy, there is a goal which has to be achieved. Agar वो एक गोल डिफाइन ना हो, if there are not enough checks, people are not willingly, even if they are the best in their work, they won't be able to coordinate with others. See, that's a problem. If, let's suppose, if I have been working alone for a while and I've been great at my work, right. तो अगर कोई टीम वर्क वाला जॉब आ जाए जिसमें मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेती है टीम वर्क के लिए, if the team doesn't guide me how do I have to cooperate, how do we have to work together, then वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाएगी. वहाँ पे I'll try to do things on my own, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को उतना फ़ायदा नहीं होगा, राइट. सो इवन इफ यू हैव द बेस्ट एम्प्लॉयज इन योर इन योर ऑफिस, इन योर वर्क स्पेस, इवन देन यू हैव टू गाइड देम, मेक श्योर यू ऑप्टिमाइज देम टू देयर फुलेस्ट. ठीक है, तो वो एच उससे रिलेट करता है, राइट. अब बात करते सीधे फंक्शन ऑफ एचआरएम में.
सी फर्स्टली इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले मैंने बोला ही अभी आपको रिक्रूटमेंट, सी एड्स को हम बोलते हैं इनविटेशन। पीपल कंफ्यूजेस रिक्रूटमेंट विद सिलेक्शन। नहीं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। रिक्रूटमेंट में आप व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज इनवाइटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, राइट। इसको अगर मैं सीधा बोलूँ, इनविटेशन ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, आपने कुछ स्पेसिफिकेशन रख दी कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट यू थिंक विल बी नीडेड टू परफॉर्म दिस जॉब। मतलब कोई ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कॉमर्स से होगा, आर्ट से होगा, इज इट ओपन फॉर ऑल और इज इट स्पेसिफिक टू इंजीनियर्स, राइट। तो आप उसमें रिक्रूटमेंट में मेंशन कर सकते हो, आप पूल ऑफ कैंडिडेट्स लेके आना चाहते हो। अब आप अपनी सर्च को और रिफाइन करना चाहते हो, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, डेफिनेटली you'll find majority of graduates, right। अब आपको थोड़ा और रिफाइन करना है, तो आप वहाँ पे क्या बोल दोगे, कंडीशन डाल दोगे, those who have scored only those who have scored 70% and above can apply for this post। तो वहाँ पे क्या है, आप एक कंडीशन डाल रहे हो, जो उसके बाद 70% एंड अबव होंगे वही उसके लिए वैलिड हो पाएंगे। हर कोई उस चीज़ के लिए, उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो एक आपने कंडीशन डाल दी है। तो इसके लिए वाई, बिकॉज यू वांट बेस्ट पीपल टू बी वर्किंग इन योर ऑफिस, राइट। अपने काम में आप चाहते हो द ओनली बेस्ट एम्प्लॉइज गेट द वर्क, राइट। तो रिक्रूटमेंट क्या है, इन्विटेशन। आपने इनवाइट कर लिया बहुत सारे लोगों को, लेट सपोज आपने कंडीशन भी डाल दी दैट 70% प्लस इंजीनियर्स लाइक बीटेक ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर द जॉब। अब ऐसा तो है नहीं दैट देयर इज ओनली 5 और 10, है ना। चाहे आपकी जॉब ओपनिंग हुई 5-10, बट यहाँ पे भी बहुत आपको थाउजेंड्स में इजीली आपको एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे। तो 1000 में एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज सिलेक्शन, राइट। अब आपके पास इतने सारा पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ गया which are meeting your eligibility criteria what you have given 70% and above BTech, right। अब इसको इसमें थोड़ा और रिफाइन करने के लिए आप क्या बोल सकते हो कि पास्ट एक्सपीरियंस भी हो, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपने मांग लिया। तो उससे क्या होगा, पूल ऑफ कैंडिडेट और छोटा हो जाएगा पर बेटर होगा, राइट। बिकॉज यू आर सीकिंग नॉट अ फ्रेशर बट एन एक्सपीरियंस पर्सन। अब उसके बाद क्या है वहाँ पे, अब आपको इंटरव्यू प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सिलेक्शन जो है प्रोसेस, उस पे जाना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सी इंटरव्यू है, असेसमेंट है, और बहुत सारे अलग मेथड्स भी हैं जिससे यू फाइनलाइज ऑन द पीपल दैट यू विल बी पिकिंग अप, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्टली रिक्रूटमेंट, make sure that you remember this, recruitment is not selection, recruitment is basically invitation, whosoever is eligible can apply for that post। and selection is bit different। selection में आप क्या करते हो, what you do is basically you select which among the pool of candidate is best suited for your job। उसके लिए what you can do is basically conduct interviews, have group discussion, right। बहुत सारे टेस्ट ले सकते हो असेसमेंट में, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो सारी असेसमेंट के थ्रू आप एक सिलेक्शन, एक पूल बेस में से जितने भी लोग आपके फाइनल होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब उसके बाद क्या है, वंस यू हैव सिलेक्टेड पीपल व्हाट यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू प्लेस देम। प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। उसके बाद वंस सिलेक्शन द पार्ट हैज़ बीन डन, राइट, आपने क्या करा था, आपने 5-10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू प्लेस देम अकॉर्डिंग टू द जॉब रूल्स जो भी आपने बताए थे, जो भी you needed them। then if you let's suppose you needed and engineer in perspective, तो engineer को you have hired and you have put that person in that place। तो 5 to 10 लोगों को आपने प्लेस कर दिया है, गिवन डिफरेंट जॉब रोल्स होंगे, कोई एक सीनियर लेवल पे होगा, कोई जूनियर लेवल पे होगा, सो विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो तीनों प्रोसेस का सिंपल है। फर्स्टली रिक्रूटमेंट इज इन्विटेशन, यू इनवाइट पीपल। सिलेक्शन इज सिलेक्टिंग फ्रॉम दोज हु हैव बेसिकली अप्लाइड फॉर दैट जॉब। सिलेक्शन में डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, रिक्रूटमेंट में एडवर्टीजमेंट करी जाती है। अब रिक्रूटमेंट भी दो टाइप्स की होती है एज यू नो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ इट कि इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ रिविजन। उसके बाद देन वी प्लेस, ओके। नाउ once you have selected the candidate, you have placed those candidates, second function that is of very much importance is training and development, right। अब see होता क्या है, लेट सपोज इफ यू आर हायरिंग फ्रेशर्स, यू नो दैट फ्रेशर्स डोंट नो अबाउट द वर्क, राइट। उनको नहीं पता, मे बी दे नो हाउ टू
हाउ टू यूज़ एक्सेल, ठीक है, एक्सेल यूज़ करना आता होगा। मे बी दो दे नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मे बी दे नो अबाउट बेसिक स्टफ्स, लेट्स सपोज एडिटिंग स्किल्स, और भी जो भी बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड थी उसके लिए, जॉब के लिए। बट होता क्या है कि आपके देर देर आर सर्टेन गैप्स, जैसे आप काम कराना चाहते हो, जैसे आपको लगता है दिस इज हाउ द वर्क शुड बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू डू, यू ट्रेन योर एम्प्लॉइज। सो उसमें हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बना रखी ऑन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ दिस। सो इफ यू वांट टू लर्न इन डेप्थ अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माय वीडियोस ऑन टैलेंट प्लेसर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैंने थोड़े टाइम पहले, लाइक नॉट इन रिसेंट, थोड़े टाइम पहले आई हैव कवर्ड इन डेप्थ अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड द ट्रेनिंग पार्ट, राइट। अब ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग इज मेंट फॉर ऑल, जो हमारे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ही होता है। जो लोअर लेवल का कहने का मतलब है दोज हु आर ज्वाइन न्यूली, फ्रेशर्स हैं या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। डेवलपमेंट इज सर्टेनली टू द हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, जो मैनेजर्स होते हैं, राइट। सो वंस यू नो द वर्क, आपको काम तो पता है काम कैसे करना है। डेवलपमेंट में क्या है कि आपको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, थोड़ा और ड्यूटीज के बारे में बताना, थोड़ा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, सो दैट यू कैन टेक अप ऑन द मेजर रोल्स इन फ्यूचर, राइट। हमने बोला है कि पर्सोनल मैनेजिंग जो होती है, कि जो मैनेजर्स होते हैं, कोई एमडी होता है, कोई सीईओ होता है, तो उनको whosoever will replace, they also need to be trained, right। तो उनको भी डेवलप करना पड़ता है, because it's not about the skills, it's about the mindset। after a point of after a point of time, it's not about the skills that you have, it's about mindset that you have, because once you are at the top level of hierarchy, you need to make decisions, and that decisions are very tricky, right। कोई ट्रेन नहीं कर सकता, बट कोई एक एप्टीट्यूड, कोई एक ऐसा आपका डेवलप कर सकता है, आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, दैट इन दोज करंट सिचुएशन व्हाट डिसीजन यू शुड बी टेकिंग और व्हाट वन शुड बी टेकिंग, राइट। तो आइडेंटिफाई करना गैप्स इन स्किल्स एंड नॉलेज, वो होता है हमारा ट्रेनिंग का पार्ट। फिर हम बात करते हैं डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सी, ऑब्वियसली। अब क्या होता है, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। देखो, फर्स्टली क्या, ट्रेनिंग में जो एनालिसिस, आपको पहले स्किल्स और नॉलेज में गैप आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको ट्रेन करना है। अब उसको ट्रेन करने के लिए आप पर्सनली क्यूरेटेड ट्रेनिंग सेशन नहीं बना सकते। व्हाट यू डू इज बेसिकली ट्रेनिंग सेशंस जो है, दैट इज फॉर ऑल, ट्रेनिंग सेशंस फॉर ऑल, ठीक है। ये हम एक ट्रेनिंग सेशंस बनाते हैं सबके लिए, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्यूरेटेड नहीं करते, बिकॉज जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली। हम इसीलिए ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल बनाते हैं, जिसमें everyone can get covered, majority of their doubts can get covered। अब if we were basically covering or making training sessions curated personally for each and every individual employee, the cost will go thrice or probably way too high, जो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो आपके करिकुलम है, डिलीवरी मेथड्स है, दोज हैव टू बी डिफाइंड, दोज हैव टू बी ऑपरेटेड, एंड इनको रिव्यू भी करना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ट्रेनिंग मेथड्स भी काफ़ी टाइम में पुराने होते रहते हैं। वेन एवर देर इज़ एन अपग्रेडमेंट, काफ़ी अपडेट्स आते रहते हैं इन टेक्नोलॉजी, एज यू नो। तो जब भी इतना अपग्रेडमेंट, क्या कोई एडवांसमेंट आ रहा है, दैट यू ऑल्सो हैव टू वर्क अपॉन योर ट्रेनिंग मेथड्स एज वेल, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन है, कंडक्ट कराने होते ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कशॉप, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, कि आपको इम्प्लीमेंट भी कराने पड़ेंगे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हैं, उनको वर्कशॉप्स हैं। और मेक श्योर दैट एवरी एम्प्लॉई फॉर फॉर हुम द ट्रेनिंग इज मेंट, वो उसको अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इवैल्यूएशन, सी नेक्स्ट पार्ट इज इवैल्यूएशन। आपको इफेक्टिवनेस ट्रेन कर, आपने ट्रेन कर दिया, the whole idea of training is to make sure that the gap of knowledge and skills is actually being served। मतलब जो भी आप ट्रेन कर रहे थे वो एक्चुअली में इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो चीज़ जो आप कर रहे थे, जिसके लिए ट्रेन कर रहे थे, वही काम नहीं हुआ, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इफेक्टिवनेस जो है ट्रेनिंग की, वो इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। सो इससे भी आपको फीडबैक मिलता है। लेट सपोज आप ट्रेनिंग मेथड से ओनली 3 आउट ऑफ 10 आर एबल टू एक्चुअली शो इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस। तो ज़रूरी नहीं कि साथ के साथ दे आर लेथार्जिक, दे आर लेजी पीपल, दैट दे आर नॉट लर्निंग। मे बी देर इज सम प्रॉब्लम इन योर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और इन ट्रेनिंग सेशंस, दैट एक्चुअली नॉट everyone is able to comprehend it accordingly, right? Because 70%
इफ द फेलियर रेट इज इट्स प्रेटी हाई, बट अगर आपके 8 में से 8 आउट ऑफ 10 वर able to learn, able to actually get trained, effectively perform the work that they were intended to, then you realize that the two persons who are not performing, the बेसिकली जब उनकी तरफ से यू आर फेसिंग एक कमी दिखती है, राइट? फिर करियर डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला, दिस दीज आर फॉर हायर लेवल, सिंपल ट्रेनिंग फॉर लोअर लेवल्स ऐसे एसोसिएट कर लो। डेवलपमेंट इज फॉर हायर लेवल्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज की। यू बेसिकली गिव एम्प्लॉइज एन अपॉर्चुनिटी दैट you have been working as a team leader for a while now. Let's give you an opportunity where you gonna manage the whole, let's suppose the block, राइट? यू आर जोनल मैनेजर, यू आर डिपार्टमेंटल हेड, राइट? तो टीम से डिपार्टमेंटल हेड बना दिया। सो वेयर यू आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी, मोर करियर ग्रोथ। अब ना वहाँ पे वी आर टेस्टिंग योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, राइट? वहाँ पे आपकी स्किल्स की हम बात नहीं कर रहे, बिकॉज दैट स्किल्स you have learned, you have gone through, you have been through that learning process. Now we are talking about your decision making skills. So this is another function where we are talking about training and development, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शन नंबर थर्ड पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक। वेरी इंपॉर्टेंट दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज बीन थ्रू आउट योर एचआरएम, राइट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल और फीडबैक की बात करें एक फंक्शन की तरह। सी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल यू शुड बी अप्रेज, राइट? सो अगर जैसे भी कोई भी एम्प्लॉय है दैट ही इज बिन वर्किंग वेल, कुछ टारगेट्स दे रखे, उन टारगेट्स को अचीव कर लेता है, तो ही शुड बी अप्रेज्ड। एक गोल है, गोल अचीव कर लिया, उसको अप्रेज करा जाना चाहिए, एक फीडबैक दिया जाना चाहिए दैट यू हैव बीन डूइंग अ फैबुलस जॉब, वी आर सो impressed by you. You have been seeing many of the employees getting awarded, best employee of the month, right? So basically saying, and this culture is not only to the food serving industry, which I have given example in the last class, जिसमें मैंने बात करी है कि आप डोमिनोज जाओगे, if you go to KFC, you see employee of a month board, तो वहाँ पे those who are performing employee of the month, उनको क्या मिलता है? एक बेसिकली उनकी फोटो और उनका नाम दिखाया जाता है ऑन द बोर्ड, राइट? बट सेम गोज इन एमएनसीज एज वेल, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं होता, बट दोज हु आर परफॉर्मिंग वेल उनको एक अवार्ड दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट एंड अवार्ड इज बीन गिवन, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट मॉनिटरी इफेक्ट ऑल द टाइम, बट इट्स ऑल अबाउट द रेटिंग दैट योर क्लाइंट हैज बीन गिविंग, एंड फॉर बिकॉज ऑफ इट यू कैन बी गेटिंग एन अवार्ड, ठीक है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक की बात करें, गोल सेटिंग। अब गोल भी ऐसे सेट करना जो क्लियर और मेजरेबल हो, जिनकी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली आप मेजर कर सको, राइट? गोल्स आप वेगली सेट नहीं कर सकते। अरे मैं कल जेआरएफ क्लियर कर लूँगा, नहीं, कल नहीं होगा ना। जब जब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, जब तक आप एग्जामिनेशन के लिए बैठोगे नहीं, जब तक आप एग्जामिनेशन नहीं दोगे, तब तक आपका नहीं हो पाएगा, राइट? सो इट हैज़ टू बी अ क्लियर एंड मेजरेबल दैट whenever the next cycle comes in, whenever the next UGC net cycle comes in, if I have been doing my mock test well, if I am getting a percentile above what was the last year percentile, right? So there are chances that I can गेट माई JRF, राइट? तो आपने गोल सेट कर रखा है, एक टाइम फ्रेम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रेगुलरली असेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट गोल। सी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए भी बोलते हैं दैट यू हैव टू असेस योर परफॉर्मेंस। हाउ? मॉक टेस्ट दो, अटेम्प्ट करो, पता लगाओ कि आप एक्चुअली में कितना लर्न कर पाए हो, उस चीज़ को नहीं कर पाए। सेम गोज फॉर एम्प्लॉयज, जब आपको गोल्स दे रखे हैं दैट यू हैव टू अचीव, अगर आप वो जो परफॉर्मेंस है उसको आप मेजर नहीं करोगे, मॉनिटर नहीं करोगे, तो पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली में उस गोल से कितना पास हो, कितना दूर हो। तो उसके लिए परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, वाई? बिकॉज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, सो दैट इज़ वाई कोचिंग प्लेज अ मेजर पार्ट हेयर। जब हम बात करते हैं दैट यू गेट अ फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव, सो वी आर नॉट सेइंग an objective, we are saying constructive feedback, this is where you are getting wrong, this is where you should be making your improvements. So this is what your constructive feedback is all about, right? So it's not about making some taunts on someone else that this is, what are you doing, like you are worthless, not these things. You have to be constructive that according to me, in paper one you are having problems in
लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट? सो एंड हाउ यू शुड बी कवरिंग, तो वहाँ पे बिकॉज 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, यू आर बीइंग ब्लैंक, यू आर लीविंग देम, सो दैट शोज दैट यू आर नॉट गिविंग और अलॉटिंग इट इनफ टाइम टू यूनली रेसिप्रोकेट रिजल्ट, राइट? उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? कंडक्टिंग फॉर्मल इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, राइट? तो सिंपल सी बात है, लेट्स सपोज इफ यू वर गिवन टारगेट कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है, ये इसका 100 यूनिट्स का टारगेट दे रखा था, आपने बनाई है 70, ठीक है? सो आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, ओवर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आपका टारगेट 100 यूनिट्स का था एंड यू आर ओनली मेकिंग 70 यूनिट्स एंड यू आर अंडर परफॉर्मिंग, दैट इज देयर, ठीक है? तो एक इवैल्यूएशन जो होती है जिसपे एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, जिसमें हमने बोल रखा है 100 यूनिट्स शुड बी मेड। अब इसमें टाइम फ्रेम कितना भी हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, डिपेंडिंग, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज यूनिवर्सल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड है, वो बहुत डिफरेंट होता है। अब डेवलपमेंट प्लान्स क्या है? सी क्रिएटिंग प्लान फॉर एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ। सो वंस इफ यू सी समवन इज परफॉर्मिंग वेल, आपने 110 यूनिट बना दी जब आपको 100 यूनिट्स बोली थी, सो वी नो दैट दिस एम्प्लॉय इज हार्ड वर्किंग, दिस वी नो दैट दिस एम्प्लॉय इज एक्चुअली गोना बी अ ग्रेट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो वंस you know a potential of someone, then you actually play down the cards on how this employee can grow, and basically we have to make sure that we retain that person in the organization, right? See, recruitment is one thing and retaining is another thing, right? तो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन करना, उसके बाद रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सी इट्स इसको हम सिंपलर पॉइंट्स में अगर हम बताएं, तो सेट गोल्स एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया दैट विल बी यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। तो अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, तो आपको गोल सेट करना है। सबसे पहला है गोल सेटिंग पॉइंट, अगर इसमें हम बात करें। उसके बाद है कंप्लीट रिटन इवैल्यूएशन दैट रेट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया। तो परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, आपने जो गोल सेट कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा 100 यूनिट्स का हमने गोल सेट कर रखा है। Meet with the employee to discuss the evaluation and suggest means of improving performance. Once you see that employee is not actually, doing what should be done to achieve that target, you need to sit down with that employee. Make sure you tell them what is the problem, where they are lacking, where they can improve, and then working upon it to make sure that they achieve the target that they wanted to, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात थर्ड पॉइंट में करते हैं, राइट? अब उसके हम बारे में बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हमने बारे में थोड़ी देर पहले बात करी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने अभी पूरी अच्छी तरीके से बात करी। अब ट्रेनिंग क्या है? क्रूशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एम क्या करता है? आपके नॉलेज, स्किल और रिसोर्स एबिलिटी गैप को, जितने भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करने का, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ठीक है? ट्रेनिंग एक क्रूशियल एस्पेक्ट बन जाता है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब ट्रेनिंग होती दो टाइप्स की, एज वी ऑल नो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, राइट? सो होता क्या, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई विल टेल यू हाउ दे फ्रेम अ क्वेश्चन इज बेसिकली विच आर द फॉलोइंग आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो उसमें आपको 2-3 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के दे देंगे और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का दे देंगे। उसमें आपसे अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑन द जॉब का है और ऑफ द जॉब का नहीं है। सो यू हैव टू पिक अप द राइट ऑप्शंस। तो अब ट्रेनिंग की डेफिनेशन पे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि एक क्रूशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। क्या है? इससे इंप्रूव करनी है परफॉर्मेंस, ठीक है? आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो? सी, अगर आप किसी इंसान को ट्रेन करना चाहते हो, उसको बेटर बनाना चाहते हो, पहले उसको उसके काम के बारे में बताते हो मतलब नॉलेज देते हो, ठीक है? उसको नॉलेज देते हो कि आपको ये काम परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कितने रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है। सी, तो उससे क्या होता है कि द कॉन्फिडेंस गोज अप वंस अ पर्सन एक्चुअली गेट टू नो द जिस्ट ऑफ इट कि कैसे काम करना है, द कॉन्फिडेंस गोज अप। उसके बाद क्या है? उनको स्किल्स देना, मतलब आपने लेट्स सपोज इफ यू आर टीचिंग समवन टू लर्न एक्सेल, तो आप पहले बेसिक समझाओगे एक्सेल में बेसिक क्या होते हैं, उसके बाद आप उसमें हमने स्किल्स के बारे में बात करते हैं, शॉर्टकट कीज के बारे में हम बात करेंगे। तो शॉर्टकट कीज के बारे में अगर आप बात करोगे तो उससे स्किल्स के बारे में उनकी स्किल एनहांस होगी। वाई? बिकॉज जब आप एक शॉर्टकट की तरफ बताते हो, अगर आप बेसिक्स पहले बता देते हो, शॉर्टकट से आपका टाइम सेव होता है। सो दैट इज व्हाट हमें ऑर्गेनाइजेशन वांट्स दैट द एम्प्लॉई और द एम्प्लॉई आल्सो वांट दैट दे डू
मैसिव अमाउंट ऑफ वर्क इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। तो उसके लिए यू नीड टू लर्न द शॉर्टकट कीज, तो वो भी आपको दे कैन टीच यू, राइट। और उसके बाद एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जब आपने शॉर्टकट सीख लिया है, सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, हाउ टू मेक श्योर दैट योर एक्सेल प्रेजेंटेशन गेट्स बेटर चार्ट्स की हेल्प लेके, राइट। बिकॉज nobody wants to read all the data, nobody wants to go through all the data sheets, right। तो अगर आपके पास if you have to present it, how you can present it basically with the help of charts, graph, and making sure that the other person also get interested while seeing that report, ठीक है। तो it could be anything, training could be of anything, तो जिसमें हम gaps को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग में जब मेथड्स, देख दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, एक होती है हमारी ऑन द जॉब जो आपको काम पे करते करते सिखाई जाती है, और एक होती है ऑफ द जॉब जो काम के बाद, जब काम से यू आर नॉट रिलेटेड टू द वर्क, काम के बाहर आपको लर्न कराया जाता है उन सब चीज़ों में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग एंड एक्वायरिंग स्किल वाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल वर्क टास्क, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो दैट इज रिलेटेड टू द वर्क, ठीक है। उसी के दौरान आपको लर्न कराया जाता है, उसी के दौरान आपको स्किल्स एक्वायर कराई जाती है, ठीक है। कोचिंग, कोचिंग में क्या होता है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज मेंटर जो होते हैं वो गाइड करते हैं ट्रेनीज को, ठीक है। कोचिंग में हम बात करते हैं जो एक्सपीरियंस, जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सीनियर एम्प्लॉइज, सीनियर एम्प्लॉइज के पास क्या है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। एक्सपीरियंस नॉलेज काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करता है। एक मेजर रोल कैसे प्ले करता है, वंस यू हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, आप एक लेवल पे हो जाते हो जब दूसरे इंसान को समझा सकते हो, राइट। सो एक ट्रेनी के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मुझे कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो इफ देयर इज समवन हु इज एक्चुअली देयर टू हेल्प यू आउट, कि इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, डूइंग इट राइट, हाउ यू शुड प्रोसीड हेड। तो कोचिंग में जिसमें एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉई क्या करता है, मेंटोर करता है और गाइड करता है ट्रेनीज को, ठीक है। तो इसमें हम कोचिंग की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जॉब रोटेशन की। ट्रेनीज वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट और रूल्स। अब इसमें क्या है, जॉब रोटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग सेक्टर, राइट। आपने देखा होगा मेनी पीएसयू जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, वहां पे क्या करा जाता है, जॉब रोटेशन के थ्रू लोगों को ट्रेन करा जाता है, जिससे आपको सारे के सारे काम आ जाए, राइट। तो सारे के सारे काम का मतलब क्या है कि आपको जो भी रिलेटेड वर्क है आपके डिपार्टमेंट से कभी दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेज दिया जाता है, जिससे यू लर्न द प्रोसेस, आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पे क्या क्या काम है, दूसरी जगह पे क्या काम है। सो दिस इज वॉट योर ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, यू लर्न थ्रू रोटेशन, जॉब रोटेशन। हमने देखा कि काफ़ी जगह ट्रांसफर होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मे बी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मे बी फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच। तो आपको जॉब को रोटेट करा जाता है, जब आप डिफरेंट जॉब रोल प्रोवाइड करा जाता है, सो यू लर्न समथिंग न्यू, यू गेट टू नो कि हाउ द टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन हेयर, राइट। तो ये ट्रेनीज को वर्क करा जाता है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और रोल्स, उसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं अप्रेंटाइसशिप, ठीक है। अप्रेंटाइसशिप क्या होता है, लर्न फ्रॉम स्किल वर्कर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। अब इसमें आपने देखा है कि आपके साथ हमारे जैसे लेट्स सपोज इफ यू हैव एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एट योर प्लेस, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, या हम किसी प्लम्बर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, सो देयर इज अ गाय अलोंग विद दैट इलेक्ट्रिशियन जो वहाँ पे देख रहा होता है, मे बी हैंडिंग ओवर थिंग्स, जैसे हम बोलते हैं कि ही इज हिज सपोर्टर, उसके साथ है, उसको हम इंग्लिश में अप्रेंटाइज बोलते हैं, ठीक है। अप्रेंटाइज क्या मतलब है, दैट पर्सन इज लर्निंग वाइल वॉचिंग हिज मेंटोर डूइंग द वर्क। तो एक अप्रेंटाइज रखा हुआ है एक पर्सन ने, कि जो उसका हेल्पर है, जो उसकी हाथ बटाता है, जो उसकी मदद करता है, एंड दैट अदर गाय इज लर्निंग कि एक्चुअली में इफ ही एनकाउंटर सच सिचुएशन सो व्हाट ही हैज टू डू, ठीक है। तो हमने देखा जैसे प्लम्बरिंग में भी देयर इज समवन अलोंग विद दैट गाय, so he might be not be doing the majority of work but he is learning there, he is looking at the experiences and then gaining through that कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन में once he started working तो वो क्या करेगा, राइट। तो अप्रेंटाइसशिप में रियल एक्चुअल प्रैक्टिस मिलती है। तो इसमें स्किल वर्कर्स, जो हमारे स्किल वर्कर्स होते हैं, जैसे हमने प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियन की बात करी, तो दे आर स्किल वर्कर्स, उन्हें पता है कि यहाँ पे व्हाट हैज टू बी डन, राइट। तो द अदर पर्सन वॉचिंग देम लर्न थ्रू देम एंड देन ही रियलाइजेज व्हाट ही हैज टू, कि उसको अब क्या करना है। तो दीज आर द रियलाइजेशन दैट ही लर्न एक्चुअली में, ठीक है। तो अप्रेंटाइसशिप का एग्जांपल जैसे मैंने बोला सिंपल है, प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियन उसको
हमारे जो उनके साथ जो उनका हेल्पर होता है, तो उनको हम बोलते हैं अप्रेंटाइज, और वही लर्न करते हैं अप्रेंटाइजशिप के थ्रू। अब इसके एडवांटेजेस की क्या बात करते हैं, सी प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब जो भी है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू डे, राइट। तो आपको काम करते करते लर्न करने को मिल रहा है, सो नॉट नॉट अ यू नो नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो उसमें प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की वजह से यू लर्न समथिंग न्यू, यू गेट टू नो अबाउट थिंग्स, that is very important. Second is immediate application of skills. So if you learn new skills, you can apply them, right? Let's suppose the electrician comes with his helper, and he asks his helper to tie up the board, right? To to join the wires. तो वहाँ पे you have learned how to join the wires, taping करना. So all of those things you can apply those skills. So इसमें हम बोलते हैं immediate application of skills. कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सर्टेन स्किल सेट। तो अगर हम बात करें, जॉब रोटेशन इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सर्टेन स्किल सेट। अगर मैं आपका रोटेट ही करता रहूँ फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, सो आई वोंट बी एक्चुअली नीडिंग एन एक्सपीरियंस पर्सन। एंड आई नो अबाउट योर बैकग्राउंड एज वेल, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वाइल। जब आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम ही कर रहे हो काफ़ी टाइम से, एंड योर पास्ट परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, now there is an advantage when I send you to the other department. Because this guy has certain skills set, he can definitely be an handy asset in that organization as well, because of his past, जो मैंने देखा इसका past experience है, he can definitely be an asset to the other team as well. तो इसको हम बोलते हैं on the job training, जिसमें हम बात करते हैं methods, coaching, job rotation and apprenticeship. There are other methods as well, but these are the few that which have been coming in repeatedly in the examination. Just you have to learn the basic difference है। जैसे कोचिंग है, मेंटोरशिप एक अलग भी है, राइट। कोचिंग भी है, मेंटोरशिप भी है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जिसमें हम बात करते हैं काम करते करते यू लर्न एंड एक्वायर skills, तो उसको हम on the job training बोलते हैं। I told you that towards the end of the video I'll be sharing something very crucial and important for your learning, and that is for your paper 1, right? It is common for all, as we know paper 1 is common for all. And if you want to make sure that your preparation is going well in the right direction, in the right step, or if you want to start from the learn from the basics, what you can do is basically download UGC Net Essential, claim your free ebook by WhatsApping on this number, right? 98 9873907600, right? तो इसके बारे में हमने बात करी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल बेसिकली व्हाट्सएप करना है, एंड देन यू कैन यू कैन गेट व्हाट यू बेसिकली वांटेड टू, राइट। तो अगर जो भी आपको चाहिए, तो 9873907600 पे जाके आप व्हाट्सएप कर दो, और वहाँ जाके दे विल गिव यू ऑल द ई बुक्स PDF जो भी है फॉर ऑल द 10 यूनिट्स, यू कैन इजीली क्लेम दैट, राइट। तो जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकते हो, राइट। सो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री। मेक श्योर दैट यू grab this opportunity and enhance your learning, right? Now, thank you all for joining, right? I've been saying that this for a while, that as Talent Blazer is being growing, we are basically trying that we actually grow a lot, and that is all being possible because of you, right? So we have there is Talent Blazer YouTube channel, and there is Talent Blazer app on the that is available on the Play Store, right? So the link for the same will be mentioned in the description. So if you haven't downloaded it yet, please download it. And why it is important and crucial for you to download, because Talent Blazer की app पे you can attempt a mock test for free, right? You'll get to know कि क्या है mock test में, क्या क्या ज़रूरी है, everything will be there. mock test में आपकी learnings, better answers, if you get a question wrong, आपको एजुकेट करा जाएगा, ना कि सिंपल सिर्फ एक आंसर बता दिया जाएगा, रीजनिंग दी जाएगी बिहाइंड दैट आंसर। एंड थैंक यू ऑल फॉर द लव दैट यू हैव बीन गिविंग। वी हैव बीन रेटेड वेल on the Play Store. 4.8 is an incredible rating, so thank you all for that. And those who haven't downloaded the Play Store app from the Play Store, do it, and you love that app, and definitely leave a rating for it as well, right? So thank you all for uh, watching the video till the end. Like the video if you like the content that we are making, subscribe to the channel if you are new here, and share this video with your friends so that they also get notified for the same, right? So subscribe, share, and like
and definitely share this video with your friends. And thank you all for joining. I'll meet you in the next class.